Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and this is the part 2 of your unit number 1 of the subject Automatic Control System, and we are studying the unit Introduction and Representation of Control System Components. Now, today we will study about the feedback and the types of feedback and what are the essential requirements of a good control system. Now before proceeding to that, I'll request you to subscribe to my channel, like this video, and please study well. Okay, now let us begin. What do you mean by feedback? In last lecture, we have seen the type of control systems. That first one was open loop control system, and second one was closed loop control system, which utilizes feedback signal for improving the output. Okay, now whatever output is generated is again fed back to your input signal or at your controller end, and that controller makes necessary changes accordingly and gives a controlled or a corrected output. Okay, now what do you mean by feedback? If either the output or some part of output is returned to the input side and utilized as a part of system input, then it is known as feedback. Okay, अगर कुछ पार्ट आउटपुट का या आउटपुट हम वापस से इनपुट को अगर सप्लाई करते हैं, कुछ पार्ट या जो आउटपुट है इसका कुछ पार्ट या पूरा आउटपुट अगर हम हमारे इनपुट को सप्लाई करते हैं वापस से, इफ़ वी रिटर्न इफ वी सप्लाई इट एंड वी यूटिलाइज इट एज अ न्यू इनपुट, एक नया इनपुट बोल के अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है फीडबैक. ओके, एनी आउटपुट और सम पार्ट ऑफ आउटपुट when it is returned to the input side and it is utilized as a part of system input, then it is known as feedback. Feedback plays an important role in order to improve the performance of the control system. कोई भी कंट्रोल सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे पहली चीज़ जो है वो फीडबैक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि हमारे फीडबैक पे से ही हमको पता चलता है कि हमको एक्चुअल में अगला एक्शन क्या लेना है, अगला सिग्नल क्या भेजना है, अगला प्रोसेस क्या करना है, कितने अमाउंट में करना है, करेक्टिव एक्शंस कौन से लेने हैं. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ योर everything is dependent on your feedback. If your feedback is correct, then your next input or your coming inputs will be correct. Otherwise, if your feedback is incorrect, then it may happen that your coming inputs, coming results will also be incorrect. So in this chapter we'll discuss about the types of feedback and effect of feedback. Now the types of feedback, there are two types of feedback. First one is positive feedback and another one is negative feedback. Now we are only going to discuss some brief about this positive feedback and negative feedback today, because whenever we are solving some numerical, when we will start solving some numerical, at that time we'll get into deep study of this feedback. Okay, now positive feedback, क्या रहता है positive feedback? So positive feedback adds the reference input. Okay, now let me first explain to you this diagram. This is your input which is represented by RS. Okay, it is also called as a reference input. Okay, this is represented by RS. Then this is your error detector. Here any kind of error in your input, so by comparing your input with your feedback is detected and a corrected actuating signal is given to our controller. This is your controller. Okay, now the controller performs the action and it gives your controlled signal, or it is also known as output. Okay, so this output is again measured by something, some components, and it is again fed back to your input signal, where this action happens continuously. So your reference input is represented by RS and your controlled
signal or your controlled output is represented by CS. Okay, now here the positive feedback, in positive type of feedback system हम क्या करते हैं कि जो फीडबैक आने वाला है, जो भी फीडबैक हमको मिलने वाला है, इसको हम क्या करते हैं हमारे रेफरेंस सिग्नल से ऐड करते हैं। मतलब हमारे इनपुट का और हमारे रेफरेंस सिग्नल का क्या होता है, यहाँ पर एडिशन होता है। दिस विल बी एडेड टू योर रेफरेंस सिग्नल। ओके, फीडबैक अगर पॉजिटिव है मतलब क्या है, जो सिग्नल रहेगा जो भी हमारा फीडबैक का सिग्नल रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारे रेफरेंस इनपुट में। ओके, दिस इज़ योर पॉजिटिव टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो है हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। अब ट्रांसफ़र फंक्शन जो भी रहेगा हम उसको बाद में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट फॉर टाइम बीइंग, फॉर राइट नाउ, फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जस्ट कंसीडर the transfer function of a positive feedback control system is represented by t। उसको हम represented कर रहे हैं t से। okay, and it is equals to g divided by 1 minus gh। now what is g? This is your g and this is your h। okay, and what it represents, so t is your the transfer function, or you can say overall gain of positive feedback control system। now what is meaning of gain? gain क्या रहता है? जैसे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम रेशो लेते हैं, जैसे एयर फ्यूल रेशो रहता है, या और दूसरे रेशो रहते हैं, जैसे कि गियर रेशो रहते हैं। ओके, हमारा इससे रिलेटेड और बहुत सारे रेशोज है, गियर टीथ का रेशो रहता है, व्हाटएवर, बहुत सारे रेशोज हम देखते हैं। उसी तरीके से ये गेन भी क्या है, हमारा एक रेफरेंस वैल्यू है with respect to your, which is you can say a combination, or which is the representation of your input with respect to output। input और output को जब हम compare करते हैं, या input और output को हम किसी एक particular चीज़ से जब हम compare करना चाहते हैं, particular चीज़ से जब हम उसको represent करना चाहते हैं, उस value को बोला जाता है gain। ये गेन और ट्रांसफ़र फंक्शन हम आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए गेन क्या है, हमारा आउटपुट और इनपुट का हमारा एक रेफरेंस वैल्यू है, एक रेफरेंस वैल्यू, जैसे कि रेशो है, जैसे इनपुट अपॉन आउटपुट। ओके, जैसे हमारे फॉर्मूले रहते हैं, उसी तरीके से ये गेन क्या है, हमारा आउटपुट और इनपुट का एक वैल्यू है। ओके, नाउ दिस इज योर जी। नाउ जी इज द ओपन लूप गेन। जो हमारा कंट्रोलर है उसका वो क्या है, गेन है, मतलब कंट्रोलर के आउटपुट का और इनपुट का हमारा रेशो है, समझ लो, विच इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और एच क्या है, एच इज़ द गेन ऑफ फीडबैक, मतलब फीडबैक को भी कुछ सिग्नल इनपुट रहेगा, उस हिसाब से वो आउटपुट देगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा फीडबैक सिस्टम है, ये जो दिख रहा है ब्लॉक, दिस इज आवर फीडबैक सिस्टम। फॉर दिस फीडबैक एलिमेंट, this one is input signal which is coming from the controller. Okay, now this one is input signal, and it depending on this input signal, it is giving some output. So this is our output signal which is going back to error detector. Okay, so again this one is having some input and output, so there will be some gain related with these two values of your feedback element. So this is h is the gain of your feedback path, which is again function of frequency. So the transfer function of any positive feedback control system is given by g upon 1 minus gh. Now let's go to the second type of feedback system, that is your negative feedback system. पॉजिटिव में क्या था, जो फीडबैक रहता था उसको हम क्या करते थे, हमारे रेफरेंस इनपुट के साथ में ऐड करते थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे रेफरेंस इनपुट में से इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी विल माइनस इट फ्रॉम द रेफरेंस इनपुट। जो भी हमारा फीडबैक का सिग्नल रहेगा उसको माइनस किया जाएगा रेफरेंस इनपुट में से। ओके, नाउ दिस इज नथिंग बट योर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। हम कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव टाइप भी, नेगेटिव भी, इसमें से हमको दोनों से ही कंपैरिजन करना पॉसिबल है। ओके, नाउ नेगेटिव के लिए जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, इट विल बी लाइक दिस।
T is equals to G upon 1 plus GH. Now you can see here plus sign is present here, and in positive minus sign is present there. Okay, so again the representations are same. T is nothing but your overall gain or transfer function, G is the open loop gain, H is the feedback path gain. Okay, now what is the use of this formula? Okay, now this formula, if you see it, if you look at this equation number 2, you will come to know that the value of your overall gain means overall output को अगर हम इनपुट से कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू है इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस 1 प्लस जी एच. ये जो नीचे है 1 प्लस जी एच, इसके ऊपर क्या रहेगा, हमारा ओवरऑल गेन फंक्शन डिपेंडेंट रहेगा. सो दिस 1 प्लस जी एच इज गोइंग टू अफेक्ट the value of your overall gain. It may increase, it may decrease depending on the value of this one. Okay, similarly for equation number 1, this will be dependent on 1 minus gh, the value of overall gain. जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, टोटल गेन जो है वो डिपेंडेंट है 1 माइनस gh पे. फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए. जो इसका आगे का पार्ट है हम उसको और डेप्थ में डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे. But let's go to the next point here, and that is your essential requirements of a good control system. एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम की requirements क्या क्या है, कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, how a control system should be there if it has to be a good control system. So first one उसका focus on objective. सो जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर उसका फोकस होना चाहिए. जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम रहेगा इसको हमने कुछ ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जैसे कि 10 यूनिट सप्लाई करना है, 20 यूनिट सप्लाई करना है, 15 यूनिट सप्लाई करना है. अगर हम इसको डिलीवरी से रिलेट करते हैं तो या डिस्पैच से रिलेट करते हैं तो मुझे डिस्पैच में 10 यूनिट जाने चाहिए या मेरा डिस्पैच करेक्ट होना चाहिए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है. सो दिस ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी क्लियर and the focus of your control system should be on the number of items to be dispatched. Okay, this will be your focus on objective. So a good control system should have focus on objective. Second is your suitability. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सूटेबल होना चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है और उसको आप हाई फाई कंट्रोल सिस्टम्स दे रहे हो, उसको अफोर्ड भी करते आना चाहिए, उसको वो हैंडल भी करते आना चाहिए, उसके वर्कर्स को उसका यूज़ भी करते आना चाहिए. सो इट शुड बी सूटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉम्प्टनेस, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी प्रॉम्प्ट, वो प्रॉम्प्ट होनी चाहिए. दिस इज़ इट शुड फाइंड आउट द डेविएशंस क्विकली. जो भी गलतियाँ हो रही है, मतलब जो हमारा आउटपुट है अगर वो गलत है तो ये फटाक से क्या करना चाहिए, उसने फीडबैक के ज़रिए हमारे कंट्रोलर को बता देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द क्या किया जाए, करेक्टिव एक्शन लिया जाए. सो दिस शुड बी द कंट्रोल सिस्टम शुड बी प्रॉम्प्ट. नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. द सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. इट शुड मैच विद द प्लान्स, द सिचुएशंस, एनवायरमेंट्स. इट शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक आधी ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई हो रहा है तो वो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जगह पर भी यूज़ करता आना चाहिए. ओके, इट शुड बी एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड्स. देन अगेन इट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड लुकिंग? द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग. इट शुड फोरकास्ट द फ्यूचर डेविएशन. जैसे कि अगर मेरे पास में 10 रीडिंग्स आए हैं आउटपुट के, मेरे पास में 10 रीडिंग्स हैं आउटपुट के, और इन 10 रीडिंग्स में मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो आउटपुट है ये 2 यूनिट प्लस डेविएट हो रहा है. कितने यूनिट्स? 2 यूनिट्स प्लस डेविएट हो रहा है फ्रॉम लास्ट 10 रीडिंग्स. सो ये कंट्रोल सिस्टम ने पहले ही फोरकास्ट कर देना चाहिए कि 11वां जो रीडिंग आने वाला है या 12वां जो रीडिंग आने वाला है, इट मे हैपन दैट इट इज़ ऑल्सो डेविएटेड बाय +2 यूनिट्स. सो दिस इज़ नथिंग बट फोरकास्टिंग द कमिंग आउटपुट्स. आने वाले जो आउटपुट्स हैं, आने वाले जो रिजल्ट्स हैं,
वो डेविएट होंगे, वो हमारे ओरिजिनल से वेरी करेंगे, ये चीज़ हमारे कंट्रोल सिस्टम ने पहले ही हमारे ओरिजिनल सिस्टम को क्या करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। ओके और उस हिसाब से इट शुड ऑल्सो टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट दीज फ्यूचर डेविएशन। ओके ना इट शुड बी इकोनॉमिकल, सबको अफोर्ड करते आना चाहिए, इस हिसाब से ये कंट्रोल सिस्टम होनी चाहिए। देन इट शुड बी सिंपल सिस्टम, हम जो बोलते हैं उसको यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट मेंटेनेंस और रिपेयरिंग इज़ डन एट इन हाउस। अगर उसको रिपेयर करना पड़ता है तो वो भी करते आना चाहिए, ऐसा हमारा सिस्टम सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी मोटिवेटिंग, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी मोटिवेटिंग दिस, दैट इज़ it should give more importance to preventing the mistakes and less importance to punishing the employees. So it should encourage, not discourage the employees. It should be suggestive, suggest करना चाहिए उसने कि क्या प्रॉब्लम है, where is the problem, how to solve the problem. Okay, and there should be some proper standards. उसके कुछ proper standards होने चाहिए. The control system should have proper standards. Like it should have some standardization in terms of your output, in terms of input, or whatever may it be. Okay, the standard should be very clear, it should be definite, it should be verifiable, it should be specific and measurable, जिसको बोलते हैं हम स्मार्ट टाइप में उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. ओके एंड दे शुड नॉट बी टू हाई और टू लो. ओके ऐसा नहीं कि एक यूनिट डेविएशन हो गया या 0.001 डेविएशन हो गया हमारे आउटपुट से तो इट शुड पनिश द एम्प्लॉयज़, और वो जो है वो हमारे स्टैंडर्ड से डेविएट हो रहा है बाबा, इसके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो इतना भी उसका स्टैंडर्ड शार्प नहीं होना चाहिए या इससे बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. ओके जैसे कि 2 यूनिट हो गए, 3 यूनिट हो गए डेविएशन तो भी एक्सेप्टेबल है. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. एंड इट शुड ऑल्सो नॉट बी लाइक दैट कि दैट 0.0001 से डेविएशन आ रहा है, सो लेट अस करेक्ट द इन. ओके सो लाइक दैट स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रॉपर बना लेने चाहिए. एंड वेन एवर आई एम सेइंग कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर इसमें कुछ मे बी कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रहेंगे, मैकेनिकल डिवाइसेस रहेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व रहेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर होल thing will be considered as system. Okay so thanks for watching this video. Please stay at home, stay safe and keep learning. Thank you so much.